Assalamu alaikum. Welcome to the science classroom. I'm your science instructor Najira. Today we are discussing another chapter of grade 6 and the name of chapter is force, work and energy. So let's start the chapter. These are the SLOs. You all know that what are the SLOs. You have to study these SLOs. From SLO number 4 till 6, the content is available in your science book, but the SLO that is added after 6 SLO is not included in the book. So read this PowerPoint presentation very seriously because these SLOs are not in your science book. So today is our day number 1 and our lesson number 1. So let's start the lesson number 1. Think and share with me. What is another term used for push or pull? Your time starts now. Guess the term. Yes, you are right. It is force. So what is force? Force is basically push and pull. The scientist named as Newton, he was the one who who identified the force, gravitational force. That's why the unit of the unit of force is Newton. Force is measured by a device, and the device is called force meter, right? Here, dear children, here I have used a word, and that word is called SI unit. The word is SI unit. The SI unit is basically combination of two words. It is this is abbreviation, and this abbreviation is Scientific International Unit. The abbreviation is Scientific International Unit. So, what is Scientific International Unit? हमारे पास मैं एक बहुत क्लियर एग्जांपल से लूंगी हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चीज वेट कर रहे होते हैं तोल रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि कभी वो पाव में होती है तो कभी वो किलो में होती है but when we visited the supermarket we find out that the things are in gram they are in kilogram and when we are going to build our houses we buy the iron and the bricks in the amount of tons. सो हमने देखा कि हर चीज को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल स्कूल में जब आप होते हैं तो आप आवर्स के हिसाब से होते हैं 8 hours एंड दैट व्हेन यू आर वाचिंग द ड्रामा यू वॉच इट अकॉर्डिंग टू द मिनट्स व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एनीथिंग तो आप उसको सेकंड्स में कर रहे होते हैं तो हर इसी तरीके से वॉल्यूम में भी होता है लीटर मिलीलीटर एंड सो ऑन देयर आर सो मेनी यूनिट्स अराउंड अस सो अगर ऐसा हो कि कोई एक्सपेरिमेंट हम पाकिस्तान में कर रहे हैं और हम उसको उस क्वांटिटी को पाव में मेजर कर लेते हैं एंड व्हेन इट गोज टू चाइना और उनको तो पता ही नहीं है कि पाव क्या होता है उनको तो पता ही नहीं है कि लम्हा क्या होता है उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि एक गज क्या होता है ठीक ये हमारे लोकल यूनिट्स हैं सो द साइंटिस्ट फोरम डिसाइडेड वर्ल्ड वाइड कि एक ऐसा यूनिट हो किसी हर चीज का एक ऐसी फिक्स क्वांटिटी हो जो वर्ल्ड वाइड यूज हो फॉर एग्जाम्पल टाइम के लिए टेम्परेचर के लिए लेंथ के लिए दे हैव अ फिक्स यूनिट इसी तरह फोर्स का जो फिक्स यूनिट है जो ऐसा यूनिट है दैट इज न्यूटन व्हाट इज एसआई एसआई मीन साइंटिफिक इंटरनेशनल यूनिट मतलब ये कि फोर्स का जो साइंटिफिक इंटरनेशनल यूनिट है वो न्यूटन है वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट हर जगह जब भी फोर्स को मेजर करेंगे दे विल मेजर इट इन न्यूटन now and it will be measured by force meter I hope कि आपको scientific international unit SI unit की टर्म समझ में आ गई होगी so recalling forces push and pull its SI unit is Newton Newton को हम कैपिटल N से भी एब्रिविएट करते हैं the force is measured by force meter now there are many type of forces but we are going to recall these three type of forces frictional force, gravity, and magnetic force. Friction is the force that occurs between two surfaces. Gravity is the falling force, the force exerted by Earth. And magnetic force. What is magnetic force? The force between the two poles of magnet is called magnetic force. You have studied this topic in detail in your grade 3, 4, and 5. So I am not going to give you the detail about that.
just you have to know the just you have to recall the types of these three types of force. Now, what are the effects of forces? Force क्या क्या कर सकती है? Force can change shape or size of an object. Force can move an stationary object or stop a moving object. Force can turn an object. Force can change speed and direction of object. Here you can see the effect of forces with example. If you are going to apply force on a balloon, तो आपके पास balloon जो है वो अपना शेप चेंज कर सकता है, वो बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, या वो इन्फ्लेट हो जाता है, या वो बर्स्ट हो जाता है. फोर्स कैन चेंज स्पीड. अगर आप पेडल के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो आपकी बाइसाइकिल ज्यादा तेज चलती है, ठीक है. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. आप किसी भी आती हुई चीज को पकड़ लेते हैं तो आप उसको स्टॉप कर देते हैं. फोर्स जो है वो चीजों की डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है. Here I would like to give an example of a cricket match. जब आपके पास एक क्रिकेट का मैच हो रहा होता है तो यू कैन सी कि बैट्समैन अपनी फोर्स को यूज करके आती हुई बॉल की डायरेक्शन चेंज कर देता है, उसको पिच से बाहर की तरफ फेंकता है. बॉलर क्या करता है? बॉलर एक स्टॉप हुई हुई बॉल को उठाता है और उसको बैट्समैन की तरफ थ्रो कर देता है, यानी वो बॉल की स्पीड चेंज कर देता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है. फील्डर क्या करता है? फील्डर एक आती हुई बॉल को पकड़ लेता है, तो वो फोर्स लगाकर एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी बना देता है, उसे रोक देता है. So we have different type of effect. We have different effects of forces, जो आपने previous grades में भी पढ़ेंगे. Now, what is distance? Distance is basically the length between two fixed points. दो चीजों के बीच का जो फासला होता है, दो पॉइंट्स के बीच का जो फासला होता है, that is called distance. There are various units of distance. For example, centimeter, meter, kilometer, millimeter. हम चीजों को उनकी क्वांटिटी के हिसाब से मेजर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपनी दो फिंगर्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है तो मैं सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में करूंगी. इफ आई हैव टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू, आपकी क्लासरूम में जहां आप बैठते हैं, मुझे आप दो स्टूडेंट्स की बराबर की डिस्टेंस को मेजर करना होगा तो आई विल यूज मीटर. अगर मुझे कपड़े को मेजर करना होगा तो आई विल यूज मीटर. बट अगर मुझे स्कूल से अपने घर का डिस्टेंस मेजर करना होगा तो आई विल यूज किलोमीटर. इफ मुझे रोड्स की लेंथ मेजर करनी होगी तो आई विल यूज किलोमीटर. अब इतने सारे यूनिट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई चीज सेंटीमीटर में मेजर की और मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किसी दूसरी टीचर को दिया, उन्होंने उसी चीज को मीटर में मेजर कर लिया, तो हमारी रीडिंग्स डिफरेंट हो जाएंगी. That's why scientist has decided that there should be an international unit for meter and that for distance, and that unit is meter. तो फोर्स का ऐसा यूनिट था न्यूटन एंड डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर, और इसको हम स्मॉल m से एब्रीविएट करते हैं. Here you can see from point A, I am going to use the intonation. From point A is a fixed point and point B is a fixed point. A boy who is going to ride a bicycle from point A till point B. So this is his distance. ये उसका distance है जो 4 मीटर है. Then the house से लेकर another tree तक, tree number C तक उसका distance जो है वो 3 मीटर है. So the 5, the 3, the 5 and the 4 is mentioning the distance. ये उस बच्चे का जो उसने ट्रेवल किया है उसके डिस्टेंस को मेंशन करते हैं. सेम एज इट इज आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस होता है और आपकी चेयर्स का डिस्टेंस होता है, दो फ्लोर्स के बीच में डिस्टेंस होता है, एंड ईच एंड एवरी डिस्टेंस हैज अ मेजरमेंट. और हम साइंटिफिक इंटरनेशनल यूनिट जो है वो उसका मीटर है, तो हम उसको मीटर में साइंटिफिकली मेजर कर रहे होते हैं. Now, energy. What is energy? Is there any word in your mind? Yes, you are right. Energy is basically ability of an object to do some work. कोई भी काम करने की ताकत energy कहलाती है. Energy is a very vast topic and this is not included in your book. So be careful while listening the video and watching the PowerPoint presentation. Energy has unit and its unit is joules, right? And it is mentioned by J. There are types of energy. There are following types of energy. Energy की बहुत सारी types होती हैं. Number 1 is mechanical energy.
Mechanical energy is basically by the movement or position of particles. There are two type of mechanical energy जो आपने grade 4-5 में पढ़े हुए हैं, kinetic and potential energy. काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की मूवमेंट से आती है और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है किसी चीज में. What is chemical energy? Chemical energy is basically stored in form of chemical bonds, in form of chemicals inside the particles. What is heat energy? Heat energy is stored in form of it is a stored energy. It is basically related to the kinetic energy और ये चीजों में एक सर्टेन टेम्परेचर भी प्रोड्यूस कर देती है. न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड व्हेन एटम स्प्लिट. आपको याद होगा जब मैंने आपको एटम पढ़ाया था तो मैंने आपको उसका न्यूक्लियस भी पढ़ाया था और उस वक्त ये बात आपसे मैंने डिटेल में डिस्कस की थी कि एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उनके अंदर एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है. जब वो न्यूक्लियस टूटता है तो ये न्यूक्लियर एनर्जी बाहर आती है. ना another energy, electrical energy. You are going to discuss this type of energy in your next chapter. But अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. Flow of electrical charges से जो energy produce होती है, that is called electrical energy. Now sound. Sound भी आप grade 4-5 में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं. Sound is a form of energy which can be heard और ये waves में travel करती है. ठीक है. Light energy. लाइट इज द फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी. ग्रेड 6 में आप प्रीवियस लेसन में ये बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती है. सो वी हैव डिस्कस्ड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आई एम जस्ट रिकॉलिंग, जस्ट गो थ्रू वंस अगेन. यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज टाइप्स. सिर्फ आपको इनके नाम पता होने चाहिए और आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए. मैकेनिकल एनर्जी, द एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय मूवमेंट ऑफ एंड पोजीशन. Chemical energy, the stored energy in form of chemicals. Heat energy, the energy that is going to be identified with the term of temperature, and it is also due to kinetic energy. Nuclear energy, वो energy atom के nucleus में होती है. It is very high. It is always in very high amount. Then electrical energy, the energy that travels in due to flow of electrons. Sound energy, the energy that can be heard. ये waves में travel करती है. Electrical, sorry. Now, light energy, the energy that is travel in a straight line. It is the fastest form. Now, energy always the energy conservation is another topic. Energy जो है वो ना हम create कर सकते हैं ना हम destroy कर सकते हैं. Will you agree with my point? कि ना मैं एनर्जी बना सकती हूँ ना मैं एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाती हूँ, उसमें केमिकल एनर्जी है, वो मेरी बॉडी में चली गई, एप्पल खत्म हो गया, है ना? ऐसा हुआ, एनर्जी तो खत्म हो गई. एम आई राइट? नो, आई एम रॉन्ग. बिकॉज जो एप्पल मैंने खाया उसकी केमिकल एनर्जी मेरी बॉडी में गई और उसने जाने के बाद मेरी बॉडी को हीट दी, मुझे मैकेनिकल एनर्जी में हेल्प की, तो एनर्जी ने अपनी फॉर्म चेंज कर ली बट वो खत्म नहीं हुई. सो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. हमेशा याद रखिएगा कि ना आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एक बात और भी आपके दिमाग में आएगी कि जो इलेक्ट्रिकल सेल्स होते हैं, जो बैटरी होती है हमारे पास, वो भी तो खत्म हो जाती है, उसकी एनर्जी निकल जाती है. नहीं रहती, वो खत्म नहीं होती, हम उसकी फॉर्म चेंज करके उसको दूसरी जगह यूज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिमोट में जो सेल्स हम यूज करते हैं, थोड़े दिनों के बाद उनकी एनर्जी उस सेल्स में से निकल जाती है और वो रिमोट के फंक्शन में यूज हो जाती है. तो जिस तरह जो भी खाना आप खा रहे होते हैं वो खाना आपकी बॉडी में जाता है और एनर्जी की फॉर्म को चेंज कर देता है. दिस इज अ वीडियो लिंक. ये एक वीडियो लिंक है. आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने यूट्यूब के ऊपर इस लिंक को देखेंगे. दिस इज द रेफरेंस. इससे आज जो कुछ हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको हेल्प मिल जाएगी. नाउ this is assignment number 1. The question number 1 is define force, distance and energy. स्लाइड में आपको इनकी डिटेल मिल जाएगी. आपको इनकी 2 एग्जांपल्स भी देनी है. जैसे फोर्स की एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स. डिस्टेंस की कुछ एग्जांपल हो सकती है. द डिस्टेंस बिटवीन माय हाउस एंड स्कूल इज दिस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन
my the distance between two fingers is this. आप इस तरह से कोई भी two examples लिख सकते हैं. डिस्कस द टाइप ऑफ फोर्सेस विद एग्जांपल. आपने डिस्कस की नहीं है, आप उनकी एग्जांपल लिख सकते हैं. आपने फ्रिक्शन कहाँ पर देखते हैं, आप मैग्नेटिक फोर्स की एग्जांपल भी दे सकते हैं. यू ऑल नो दैट, आपने प्रीवियस डेट्स में ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है. इन दिस द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकती है. इसके बाद आपको टाइप्स ऑफ एनर्जी लिस्ट डाउन करना है. मीन्स कि आपको टाइप ऑफ एनर्जीज की लिस्ट बनानी है जो प्रीवियस स्लाइड्स में दी हुई है. Give an example of conversion of energy, from one form to another form. एनर्जी कहाँ पर अपने आप को चेंज करती है. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल में चेंज हो जाती है, पंखा चलने लगता है. फूड एनर्जी केमिकल एनर्जी से हीट में चेंज हो जाती है आपकी बॉडी में जाते ही. लाइट एनर्जी जो है वो प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में और फूड बना लेते हैं, तो वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यूज करते हैं. सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. वीडियो लेसन भी आपके पास है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं. सो आई होप कि लेसन आपको समझ में आया होगा. We will meet another lesson. Do your assignment on time. If you have any query, you can email me. We will meet in another video tutorial. Take care of yourself. Allah Hafiz.